والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وصحبك يا محمد رسول الله. بعد حمد و صلات گرامی قدر قابل صد احترام آج کی یہ محفل بسلسلہ ایصال ثواب سجائی گئی جس عظیم شخصیت کے لیے یہ محفل پاک سجائی گئی وہ شخصیت اپنی مثال آپ تھے اور یہ محفل پاک میں گفتگو یا تقریر کرنے کا ایک مقصد بھی ہے تاکہ ہمیں آگاہی ہو کہ ہمارے والدین کے ہمارے اوپر کیا حقوق ہوتے ہیں اور والدین اپنی اولاد کی عزت کی خاطر مستقبل کی خاطر اور ان کی سہولیات کی خاطر کتنی محنتیں کرتے ہیں. مجھ کو رکھا چھاؤں میں خود جلتا رہا دھوپ میں. مجھ کو رکھا چھاؤں میں خود جلتا رہا دھوپ میں. میں نے دیکھا ایک فرشتہ باپ کے روپ میں. آیت کریمہ جو پڑھی ہے نا اس میں اللہ رب العالمین نے والدین کی بات کی ہے لیکن میں یہاں پر چند نقطے چند جملے اور 2 حدیث سنا کے بعد ختم کر دوں گا. کہہ دیں سبحان اللہ. دیکھو بھئی ہمارے معاشرے کے اندر اکثر و بیشتر محفلوں کے اندر نعتوں کے اندر تقریروں کے اندر ماں کی شان بڑی بیان کی جاتی ہے اور ماں ہے شانوں والی نہ تو اس لیے شان بیان کی جاتی ہے لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جہاں صرف ماں کی شان بیان ہوتی ہے وہاں پر باپ کے لیے کوئی ایک جملہ بھی بیان نہیں کیا جاتا. آج میں نے آپ کو صرف باپ کی شان سنانی ہے کیونکہ میں نے جو شعر پڑھا نا کہ مجھ کے کا چھاؤں میں خود جلتا رہا دھوپ میں. میں نے دیکھا ایک فرشتہ باپ کے روپ میں. آپ بھی باپ ہیں. آپ دیکھیں اپنی محبت کہ آپ اپنی اولاد کے لیے کتنی مشقت کتنی محنت کتنی تڑپ رکھتے ہیں. ذرا اندازہ لگائے نا کہ ایک باپ اولاد کو پالتے پالتے تربیت کرتے کرتے اس کی داڑھی بھی سفید ہو جاتی ہے سر کے بال بھی سفید ہو جاتے ہیں اور پھر بعض دفعہ اولاد یہ جملہ بھی کہہ بیٹھتی ہے کہ کیا ہی کیا ہے ہمارے لیے. لیکن قرآن سے حدیث سے پوچھتے ہیں کہ کیا مقام ہے کیا شان ہے. حدیث پاک ہے رسالت امام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد. یہ حدیث پاک جس کو سمجھ میں آ گئی نا تو اس کو باپ کا مقام سمجھ میں آ جائے گا. امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے. اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے. یعنی جس کا باپ راضی ہو گیا سمجھو رب راضی ہو گیا اور جس کا باپ ناراض ہو گیا اس سے رب ناراض ہو گیا. اور نبی رحمت امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ اگر باپ کا مقام سمجھنا ہے نا ہمارے روایت بیان کی جاتی ہے نا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. روایت بڑی شان والی ہے بڑی عظمت والی ہے انکار نہیں ہے.
रिवायत के ये अल्फाज है अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, कि जी जन्नत माँ के कदमों के नीचे है, कोई शक नहीं है। क्योंकि जब इबलीस को जन्नत से निकाला गया तो उस वक्त ने ये कहा था कि जन्नत में रहा मैं नहीं ना, तो मैं किसी को जाने नहीं दूंगा। अच्छा, अल्लाह की बारगाह में कहता है कि मैं इसका जरिया बनाऊंगा औरत के जरिए लोग जहन्नम में जाएंगे। अर्श उला के रब की रहमत जोश में आई। मेरे रब ने फरमाया नहीं, तू ये कहता है कि तू मेरे बंदों को जन्नत में नहीं जाने देगा। फरमाया आप फिर सुन ले, देख ले माँ का मकाम क्या है। रब ने फरमाया कि अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, कि मैंने पूरी जन्नत को उठा के माँ के कदमों में रख दिया है। ये है माँ का मकाम। अब आना नबी रहमत ने बाप का क्या मकाम बयान किया, सुनिएगा। अल्लाह अल्लाह इमाम अंबिया नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कलमा पढ़ने वालों का तवज्जो फरमाओ। हमारे माशरे के अंदर माँ की बड़ी शान बयान की जाती है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर जो शान बयान फरमाई है वो बाप की भी बयान फरमाई है, माँ की भी बयान फरमाई है। ये जरूर मानता हूँ कि माँ का बड़ा मकाम है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत रखी गई है। लेकिन मुसलमानों याद रखिएगा कि आपकी जन्नत आपके माँ के कदमों के नीचे है, लेकिन आपकी माँ की जन्नत आपके वाले की दावेदारी के अंदर है। नबी रहमत इमाम अंबिया क्या फरमाते हैं? फरमाते फरमाया बाप का ये मकाम है कि बाप को अल्लाह ने जन्नत का दरमियाना दरवाजा बना दिया है। यानी अगर कोई माँ की कदर करके जन्नत के टिकट लेकर जन्नत के दरवाजे पे पहुंच जाएगा, लेकिन जन्नत के अंदर दाखिल नहीं होगा। या रसूल अल्लाह, इस जन्नत में मुकम्मल तौर पर दाखिल होगा। नबी रहमत की हदीस से वाक़या फरमाते हैं माँ से प्यार करके जन्नत का टिकट ले लेगा, बाप से प्यार करके पूरी जन्नत में दाखिल हो जाएगा। नबी रहमत इमाम अंबिया नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या फरमाते हैं? फरमाया सलातु दावातुन यस्तजाबु लहुन्ना ला शक्का फीहिन्ना। ये हदीस पाक है, मेरे आका फरमाते हैं और पूरी दुनिया के अंदर 3 शख्सियत ऐसी हैं कि जिनके मांगने में तो देर हो सकती है, अल्लाह के कबूल करने में देर नहीं हो सकती। 3 शख्सियत ऐसी हैं कि जो दुआ मांगने में तो देर कर सकती हैं, लेकिन अल्लाह कबूल करने में देर नहीं फरमाता। नंबर 1, पहले नंबर पे कौन है? अंबिया जो दुआ मांगते हैं अल्लाह फौरन दुआ कबूल फरमाता है। जरा कह दीजिए सुभान अल्लाह। अगर सुभान अल्लाह कहते रहेंगे तो तकरीर जल्दी खत्म हो जाएगी, वरना बड़ी लंबी चली जाएगी। इमाम अंबिया क्या फरमाते हैं कि 3 बंदे ऐसे जिनकी दुआ कभी रद्द नहीं होती, जिनकी दुआ कभी कबूल कभी ना कबूल नहीं होती, कभी रद्द नहीं की जाती। फरमाया नंबर 1, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में अंबिया दुआ मांगते अल्लाह फौरन कबूल फरमाता है। नंबर 2, अल्लाह की बारगाह के अंदर जब माँ दुआ मांगती है तो अल्लाह फौरन कबूल फरमाता है। आखिरी नंबर वाला जुमला याद रखिएगा, इमाम अंबिया क्या फरमाते हैं कि अगर कोई वालिद अल्लाह की बारगाह में दुआ वाले हाथ उठाता है, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करता है मेरे मौला मेरे औलाद को तरक्की अता फरमा। अर्श उला वालिद के उठे हुए हाथ कभी रद्द नहीं करता। जब बाप औलाद के लिए दुआ करता है, बाप की दुआ वाले हाथ नीचे बाद में आते हैं, अल्लाह दुआ पहले कबूल फरमा लेता है। जरा गज के कहते हैं सुभान अल्लाह। भाई 3 बंदे ऐसे हैं जिनकी दुआ कभी रद्द नहीं होती, उनमें वालिद का मकाम है। अच्छा, जो वालिद को राजी करे ना उसको रब मिल गया। आज देखो ना कि पाकिस्तान के अंदर हमारे मुआशरे के अंदर आपने देखे होंगे ओल्ड होम बने हुए हैं। शर्म की बात है, गैरत की बात है, डूबने की बात है
कि यार एक बाप 10 औलादों को पाल लेता है, लेकिन वही बाप जब बूढ़ा होता है ना तो वो नंबर लगाते देते हैं, यार आज बाबा को तूने रोटी देनी है, हफ्ते को मैं दूंगा, पीर को मैं दूंगा, मंगल को मैं दूंगा, तो जुम्मे को मैं दूंगा, इस ईद पे मैंने कपड़े दिए, अगले जुम्मे को तूने कपड़े देने हैं। डूब मरने का मकाम है। नबी रहमत फरमाते हैं कि अगर तुम मुस्तफा को मनाना चाहते हो और मैं माँ बाप के खादिम बन जाओ, कोई अल्लाह भी राजी हो जाएगा, आमना सलाह भी राजी हो जाएगा। वक्त है ना कम, मैं इसलिए शार्ट बातें कर रहा हूँ आपसे कि एक वो बात है कि बाप की रजा रब की रजा है, लेकिन वो बात कि जो आम ना हो, कुरान का कारी भी हो, हाफिज भी हो, आलिम भी हो, मुफ्ती भी हो। मैं बस ये नुक्ते आपको देने लगा हूँ, सुनिएगा। एक आम बात है, लोग कहते हैं कि बाप को क्या पता जी, वो तो अनपढ़ है, लेकिन कुरान हो या हदीस हो, कहीं पर ये नहीं फरमाया कि बाप पढ़ा लिखा हो तो कदर करनी है, कहीं पर ये नहीं फरमाया कि बाप के पास कोई बड़ी डिग्री हो तो कदर करनी है, और फरमाया बाप अनपढ़ भी हो फिर भी बाप है, और माँ अनपढ़ भी हो फिर भी माँ है। माँ कुछ ना भी जानती हो फिर भी तेरी जन्नत तेरे माँ के कदमों के नीचे है। बाप कुछ भी ना जानता हो फिर भी तेरा बाप जन्नत का दरमियाना दरवाजा है। कोई अल्लाह को मनाना चाहता है तो मेरे आका की हदीस पर अमल करना होगा। अपने वालिद की भी गुलामी करनी पड़ेगी और अपनी माँ की भी गुलामी करनी पड़ेगी। और जरा सुनिएगा कि कैसे कैसे वालिद होते हैं। इमाम अल-अंबिया नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस है, बात सुनिएगा, बड़ी तवज्जो के साथ सुनिएगा। आप में से कई दोस्त ऐसे बैठे हैं जो मरहूम को सिर्फ नाम से जानते हैं या कारोबार से जानते हैं या एक अरबी टीचर के नाम से जानते हैं, लेकिन मैं आपको उनके तारुफ करा देता हूँ। नबी रहमत इमाम अल-अंबिया नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस पाक है। आप क्या फरमाते हैं जनाब अली? किताब का नाम है तिरमिज़ी शरीफ। अब मैं आपको किताबों के नाम बता रहा हूँ, हवाले बता रहा हूँ, इंटरनेशनल हवाले। मेरी बात गलत हो, जुमला गलत हो, आप जाना इंटरनेशनल हवाले का ये मतलब होता है कि जनाब अली गूगल पे जाना, मेरे वाली बात, मेरे वाला हवाला लिखना, आपको गूगल बता देगा कहाँ लिखा है। नंबर 1 पहली किताब का नाम है तिरमिज़ी शरीफ। इसका बाब नंबर 18, जिल्द नंबर 5, सफ़ा नंबर 177, हदीस नंबर 2914, और यही रिवायत अबू दाऊद के अंदर मौजूद है। इसकी जिल्द नंबर 2 है, सफ़ा नंबर 73 है, हदीस नंबर 1464। इसी तरह तीसरी किताब का नाम है इब्ने माजा। इसके अंदर एक बाब है, बाबू सवाबिल कुरान। इसकी जिल्द नंबर 2 है, सफ़ा नंबर 1242 है, हदीस नंबर है 3780। और इसी तरह ये रिवायत किताब का नाम है मुस्नद अहमद बिन हम्बल। इसकी जिल्द नंबर 2 के अंदर है, हदीस नंबर है 6799। और मुसन्निफ इब्ने शैबा किताब का नाम है, इसकी जिल्द नंबर 6, सफ़ा नंबर 131 है, और हदीस नंबर है 3756। कह दीजिए सुभान अल्लाह। इमाम अल-अंबिया नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक आम बाप होता है, एक वो बाप है जिससे अल्लाह ने कुरान का कारी बनाया। एक आम बाप होता है, एक वो बाप है जिससे अल्लाह ने कुरान का हाफिज बनाया। ये जो मैंने हवाले पेश किए हैं इनके अंदर ये रिवायत मौजूद है कि क़यामत के दिन आएगा, अल्लाह फरमाएगा ए हाफिज कुरान, ए कारी कुरान। और जिस तरह तो दुनिया में लोगों को कुरान सुनाता था, आज तो अर्श उला के रब को कुरान सुनाता जा। और जहाँ तो मिनल जिन्नति वन्नास पड़ेगा वही तेरा आला मकाम होगा। इमाम अल-अंबिया नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों मकानो तवज्जो फरमाओ। आज हमने जिस शख्सियत के लिए महफिल स्वयं सजाई है, लोगों के अपने अपने तरीके होते हैं। कोई जनाब अली छोले लेकर आता है, कोई जनाब अली खाना आता है, खाना मंगवाता है, खिला देता है। और मैंने ये कहा कि यहाँ तरीका मैं वो रखूंगा जिससे कारी साहब की रूह को सुकून मिले, क्योंकि आलिम दीन है, कारी कुरान है, हाफिज कुरान है। आज मैं आपको वालिद का मकाम बताना चाहता हूँ कि उनको सिर्फ इस तरह ना देखे कि वो एक कारोबारी थे। मैं जानता हूँ 18-20 साल के अरसे से कि आप हाफिज कुरान है, कारी कुरान है, आलिम दीन है, लेकिन एक आम वालिद जिसके कदमों में औलाद की जन्नत रखी गई है, एक ऐसा वालिद है जिसके बाद कुरान की तालीम हो, कुरान की तालीम हो, हदीस की तालीम हो, फिक़ह की तालीम हो। कल क़यामत के दिन जब वो जाएगा, मेरा रब फरमाएगा कि कारी कुरान,
तेरा मकाम मैं नहीं मुकर्रर करूंगा, क्योंकि हाजी के लिए मुकर्रर है, गाजी के लिए भी मुकर्रर है, आलिम का भी मकाम मुकर्रर है, शहीद को भी मकाम मुकर्रर है। कहा जाएगा ये तुम्हारा मकाम है, ये तुम्हारा ठिकाना है। लेकिन जब बारी आएगी कल ये कुरान के हाफिज कुरान के मेरा रब फरमाएगा ऐ कल ये कुरान तेरा मकाम मैं मुकर्रर नहीं करूंगा, बल्कि तो कुरान पढ़ता जा, जन्नत की सैर करता जा, और जहां तू कुरान का आखिरी जुमला आखिरी आयत पढ़ेगा वही तेरा मकाम और ठिकाना हो जाएगा। खुदा की इज्जत की कसम है, जब आपकी और मेरी जिंदगी कुरान के मुताबिक या मोहम्मद के फरमान के मुताबिक गुजरेगी, हम जन्नत के अंदर सीधा जाएंगे। और आखिरी वक्त आते फरिश्ते आकर कहते हैं मुबारक हो, अल्लाह की बारगाह के लिए तैयार हो जाओ। और जब इस तरह की जिंदगी गुजारने वाला कब्र में रखा जाता है, नकीर रहना के पूछता है बता मन रब्बू का माँ दीनों का माँ कुंत तकूलु फी हक़्क़िहा बात अमाल की है, बात किरदार की है, बात पूरी जिंदगी की है। और नबी रहमत के बारे में पूछा जाएगा और ये बता तो इनके बारे क्या कहता था। और सामने मेरे मुस्तफा जलवागर होंगे, आपसे पूछा जाएगा यानी मुर्दे से पूछा जाएगा बता तो इनको जानता भी है कि नहीं। मेरे आका फरमाएंगे ऐ सवाल करने वालों इसे जाने दो ये अपना ही है। जाके कहना सुभान अल्लाह। जिंदगी का मजा तो तब है ना कि बंदा मरे तो फरिश्ते के इर्जी इला रब्बी की रादियत मर दिया। ये क्या जिंदगी है कि बंदा आया खाया पिया खा के चला गया, ना जानवर में फर्क रहा ना इंसान में फर्क रहा। जिंदगी तो वो है ना कि आखिरी लम्हे हो और उसको ये पैगाम दिया जाओ आओ रब की बारगाह में, रब के बंदों में दाखिल हो जाओ, रब की जन्नत में दाखिल हो जाओ। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस बंदे की पूरी जिंदगी कुरान पढ़ने में हदीस पढ़ने में, क्योंकि आप में से अक्सर लोग हैं जो उनको 5-6 साल से जानते हैं, क्योंकि 5-6 साल से ना इमामत तो छोड़ दी थी ना उन्होंने। अच्छा लोग समझते हैं दुनियादार से, मुझे पता नहीं आलिम को आलिम ही समझता है। तो इसलिए मेरा जो दर्द है, मेरा जो दुख है, मेरी जो एक अंदर की आवाज है, मैं चाहता हूँ कि समझे पढ़ के उलमा का क्या मकाम होता है, हुफाज का कुरान का क्या मकाम होता है, और दुनिया के अंदर भी अल्लाह ने उनको इज्जतों से नवाजा और आखिरत में भी इज्जतों से नवाजा। एक और रिवायत बात खत्म करते हैं। अल्लाह अल्लाह इमाम अल-अंबिया नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक दूसरी रिवायत है कि क़यामत का दिन होगा, अल्लाह की बारगाह के अंदर हर बंदा हिसाब किताब के लिए खड़ा होगा, हर बंदा अल्लाह की बारगाह में खड़ा होगा। अर्शे उला के रब की बारगाह में एक अदालत लगेगी, वहाँ मेरा रब होगा, वहाँ कोई ज्यादती नहीं होगी, वहाँ कोई किसी की वकालत नहीं करेगा, वहाँ आपके हाथ वकालत करेंगे, आपके कदम वकालत करेंगे, आपकी जुबान वकालत करेगी, आपकी आंखें वकालत करेंगे, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे ये हाथ ऐ मेरे मालिक मौला ये वो बंदा है जो हमसे गलत काम नहीं करता था, बल्कि या कुरान पढ़ा करता था या मोहम्मद का फरमान पढ़ा करता था। इतना ये जुबान अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगी ऐ अल्लाह ये हमें गलत जगह इस्तेमाल नहीं करता था, या ये कुरान की जियारत करता था, या सरकार के मोहम्मद अरबी के फरमान की जियारत किया करता था। अब आशा का दिन होगा जनाब, हर बंदा परेशान होगा, एक शख्स आएगा, एक शख्सियत की आवाज आएगी, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगा है मेरे मौला इसकी मग़फ़िरत फरमा दे। पूछा जाएगा क्यों तुम कौन हो, अल्लाह की बारगाह में जवाब दिया जाएगा ऐ मेरे मालिक मौला मैं वो कुरान हूँ इसको दुनिया में पढ़ता भी था और पढ़ाता भी था, मैं वो कुरान हूँ जिसकी तिलावत किया करता था। आज मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूँ कि कारी साहब के 40-45 साल कुरान पढ़ने में हदीस पढ़ने में गुजर गए हैं। ये बताया जाएगा कुरान कहेगा ऐ मेरे मालिक तो इसकी मग़फ़िरत फरमा, अल्लाह कुरान की शफ़ाअत को कबूल फरमाएगा, अल्लाह कुरान को फरमाएगा ऐ कुरान जो तेरी तिलावत करता था मैंने उसे जन्नती बना दिया है। इस तरह का शेर है। मैं कहता हूँ कि ये जो सवालात का मामला है ना ये तो होना है कब्र के अंदर। सवाल पूछी सुन पे जिक्र सुना जरा देर नकीरो ठहरो
मेरे आका है इस सवाल पूछी से न पे। इसका उर्दू तर्जुमा यह है कि सवाल करने वाले सवाल करेंगे और वहां आके के रसूल जवाब देगा कि ऐ सवाल करने वालों रुक जाओ, मैं भी जवाब दूंगा। ये समाबो की खातिर यहाँ मर के आया हूँ, उस मुस्तफा को आने दो। क्यों? फिर सुनिए ना, दुनिया फानी है, दुनिया फानी है भाई, हर एक ने मर जाना है। अच्छा कुछ लोग, मेरे वालिद जब जिंदा थे ना, मैं सोचता था कि वालिद के इंतकाल होगा तो मैं कैसे वो दर्द महसूस करूंगा। उसी दौरान में अल्लामा खादिम साहब विशाल फरमा गए, बड़ी बड़ी शख्सियत विशाल फरमा। मैंने कहा मरना तो सब ने है ना, मजा उस मौत के अंदर है कि जो जिंदगी इंसान की पूरी मेरे मुस्तफा के दीन की खिदमत में गुजर जाए ना, उस जिंदगी के अंदर मजा है। मैंने भी मरना है, आपने मरना है, खुदा की कसम उस मौत का मजा है कि बंदा मरने के बाद जाए और मेरे नबी खुद फरमाए कि जाने दो, ये अपना ही है। क्यों? शायर ने तर्जमानी की, इस तरह की शेर है, सुनिएगा। कूड़े दुनिया ते कूड़ा जहान, अज सजन दा महू अरमान, अज सजन दा महू अरमान। भाई समझ आंदी पई है? कौन है? सुभान अल्लाह। अच्छा और किसी को समझ आया? काल साहब के जितने भी लड़के हैं ना, उनको समझ आती है, बोलना नहीं आती। अच्छा वसीम को समझ, बोल भी लेते हैं वसीम, कह दे सुभान अल्लाह। अच्छा भाई किसी को समझ आया ना? मैंने ये आपको बातें सुनानी है। कूड़े दुनिया ते कूड़ा जहान, अज सजना दा बहु अरमान, अज सजना दा बहु अरमान। पूरी दुनिया ते कूड़ा जहान, अज सजना दा बहु अरमान, अज सजना दा बहु अरमान। मेरे नबी के गुलामों मस्तानो तवज्जो फरमाओ। अर्शे उला के रब ने बाप का बड़ा मकाम बयान किया। फरमाया बाप के जब दुआ वाले हाथ उठते हैं, अल्लाह फौरन दुआ को कबूल फरमा लेता है। अल्लाह कभी दुआ को रद्द नहीं फरमाता। अर्शे उला का रब फौरन दुआएं कबूल फरमाता है। जनाब अली सैयद का कुरान का फैसला, कुरान ये कहते हैं वो बिल वालिदैन साना, वालिदैन जब बूढ़े हो जाए उनके आगे उफ भी नहीं कहना, उनके आगे बाबा दे बुलंद बात भी नहीं करना, क्योंकि इनको जो तकलीफ होती है मेरा रब नाराज होता है। आज माशरे के ये हालात है कि ओल्ड होम बना दिए गए। आज माशरे के ये हालात है कि औलाद ये कहती है अपने रिश्ते पक्के करके आ जाते, कहते हैं बाबा हमने पक्का कर लिया है। आज लोग ये कहते हैं कि माँ बाप को क्या पता जी वो तो बूढ़े हो गए हैं। लेकिन याद रखिएगा और तेरी जन्नत भी माँ के कदमों में, तेरी जन्नत है बाप की खिदमत के अंदर। इमाम अंबिया नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों गुलामों तवज्जो फरमाओ। नबी रहमत ने क्या फरमाया? आप फरमाते कि अगर तू कामयाबी चाहता है माँ बाप का खादिम बन जा, अल्लाह दुनिया में भी कामयाबी देगा, अल्लाह आखिरत में भी कामयाबी देगा। अल्लाह अकबर। इमाम अंबिया नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया? आप फरमाते हैं कि जो बंदा माँ बाप की खिदमत करता है अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी इबादतें भी कबूल फरमा लेते हैं, रियाजतें भी कबूल फरमा लेते हैं। अल्लाह उसको बहुत अजर अजीम अता फरमाता है। अल्लाह उनको क्योंकि सरकार फरमाता है रिदल रब्बी फी रिदल वालिदा व सखतिर रब्बी फी सखतिल वालिदा। अल्लाह की रज़ा वालिद की रज़ा में है, अल्लाह की नाराजगी वालिद की नाराजगी के अंदर है। इसलिए मेरे दोस्तों तवज्जो फरमाओ, जिनके माँ बाप मौजूद हैं वो उनकी कदर कर ले, वगरना कब्रों को गले लगा के रोते रहोगे, वगरना कब्रों पे जाके तड़पते रहोगे, पछताते रहोगे काश हम खिदमत कर लेते। लेकिन परेशानी की बात नहीं है, जिनके माँ बाप दुनिया से चले गए हैं। अब आखिरी जुमले सुन लीजिएगा, आखिरी बातें सुन लीजिएगा कि इस कायनात के अंदर एक ही शख्सियत ऐसी है कि जिनके हकूक हम कभी अदा ही नहीं कर सकते। नंबर 1 वालिदैन, नंबर 2 वालिदा है। औलाद के लिए सबसे अहम फरीज़ा ये कि माँ बाप जब दुनिया से चले जाए उनके इसाले सवाब से तमाम करें, उनकी कब्रों पे जाके तिलावत किया करें, उनकी कब्रों पे जाके फातिहा खाने किया करें, उनकी कब्रों पे
पे जाके फूल डाला करें। कई लोग ये कहते हुए नजर आएंगे फूल क्यों डालते हो? नबी रहमत क्या फरमाते हैं? फरमाते जब तक वो फूल ताजा रहते हैं कभी भी कब्र वाले पर आदाब नहीं होता। जब कोई वालिदैन का बच्चा दुनिया के अंदर सूरह रहमान पढ़ता है अल्लाह कब्र वाले के ऊपर से आदाब दूर फरमा देता है। और वालिदैन से प्यार करने वालों, जब कोई औलाद अपने वालिद की कब्र पे जाती है हर जुम्मे को जाना चाहिए। जो कोई माँ बाप की कब्रों पे जाता है अल्लाह उसके सगीरा गुनाहों को माफ फरमा देता है। माँ बाप ऐसे ना दुनिया से चले भी जाए ना तो जिम्मेदारी कभी खत्म नहीं होती। अब आखिरत की जिम्मेदारी है कि सारे सवाब करें, कुरान पढ़े, हदीस पढ़े, तिलावत करें, कब्र पे जाए, रोजाना जाए, 2 दिन बाद जाए, 3 दिन बाद जाए। खुदा की कसम ये वो शख्सियत है, आपको कोई परेशानी हो ना बाप के पास जाके बैठ जाओ, कहो मैं परेशान हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी परेशानी को दूर फरमा देगा, आपकी टेंशन को दूर फरमा देगा, आपके मामलात को दूर करा देगा। वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं, क्योंकि मैंने कहा था कि 4 बजे तक खत्म, मेरे से 29 मिनट हो गए। अब क्योंकि तकरीर के लिए तो देना 40 मिनट, मैं 29 से 30 मिनट लेना चाहता हूँ। 1 मिनट और है जिसके अंदर आपको मजीद वाज़ नसीहत ये करनी है कि जिनके माँ बाप चले गए हैं वो ये ना करें कि सालों के बाद जाएं, बरसी आए तो फिर जाएं, हर जुम्मे जाएं, रोजाना जाएं, आए रोज जाए, माँ बाप की कब्रों पे जाए, घर पे बैठे साले साहब कुरान पढ़े, नमाज पढ़े, जो भी करे। वो बनी इसराइल का वाक़या जुमला है। बनी इसराइल का मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा, गुजर हुआ कि एक बंदा कब्र में तड़प रहा है, रो रहा है। अच्छा गुजरे तो रोने चीखने की बात है, वापसी आए तो खुशहाल पड़ा हुआ है। और अल्लाह के कलीमुल्लाह थे ना, कलाम कर लिया, मालिक अब भी गया हूँ तो रोने की आवाज़ें थी, चीखने की आवाज़ें थी। अच्छा अब जब दोबारा आया थोड़ी देर के बाद ये बंदा हसास बचाते खुशहाल है। आखिर क्या वजह है? अर्श खुदा के रब ने फरमाया है कलीमुल्लाह, इसका एक बेटा था, बेटा वो था छोटा, वो बड़ा हुआ, माँ ने आज ही इसको मदरसे में जाके डाला है, उसने आज जाके कहा अर्रहमान अर्रहीम, आज जाकर कहा अर्रहमान। मेरे रब ने फरमाया है कलीम मेरी रहमत को गवारा नहीं कि जिसका बेटा मुझे रहमान रहीम पुकारे उसके बाप पर मैं अज़ाब नाज़िल करूं। अल्लाह ने फरमाया कि यही वजह है कि बेटे ने वहां दुनिया में नेकी की है, वो नेकी बाप को कब्र में काम आ गई है। इसलिए हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि माँ बाप की कदर करें। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये छोटा